So this is for now, this is for today. And if anyone wants to leave because of their work, you can. Uh, Otherwise, we will continue tomorrow. And if few of you have any question, you can stay back. Sir, one question before I leave. Uh, the best posture definitely is Siddhasan, which I practice either on Sukhasan or either on Siddhasan. But I have this issue um, with the thighs. I told you the joint on my no on the hips. So it is a little difficult for me. But today, after preparatory, so it was a little more easier. But Siddhasana is definitely the best posture. But one question you said the knees shouldn't be hanging. The सिद्धासन में अगर आप लेफ्ट पैर को नीचे रखते हो राइट पैर को थोड़ा ऊपर करते हो और हील्स के ऊपर हील्स एक तो मुझे वो हील्स लग रहा था प्लस मेरा जो राइट नी है वो इट इज हैंगिंग सो हाउ So in that case, don't keep it up. In that case, just keep ओके it in front. Keep it in front. फाइन फाइन Okay. so fine is also siddhasan right Yeah. that is also correct I always love Siddhasan. That is the first preferable posture for meditation pranayama. And on top of that, that is safe. It gives more wider base of support as a triangle, more wider base of support. And then it is called adapt pose. Why it is called adapt pose? Because the way it is done, that is why it is called adapt pose. You can even do the same position, keeping the heel little away, not touching the perineum region. okay You can yes even do that. Okay, same position, keeping the heel away. Then it won't be adapt pose, but at least you will get the full big triangle there, like this. So that will be nice. Okay, and also that position for those people who wants to stay like into brahmacharya, right? Because that what where that the point is working. The point is working on genital region. So basically, it is more from the reproductive organ related. That means then people, and that's why it is not prescribed for the married people and family oriented people. That is why. okay. And also, sir, when you sit down, basically, thoda sa Hips up. the back is curved. Mhm. So when you keep something down, that is a little more easier. But Definitely we do need to that. practice without. But how do you practice without keeping something down? Why? Why? Is there any competition? Tell me. Okay. Is there any competition? We need to see our body today. That's it. Yes, I'm not saying you should Absolutely. not prepare for it. You should prepare for it with other asanas what we do in our life. Okay. There are many asanas. We need to keep on doing those asanas. Surya Namaskar. We need to do pigeon pose, hip opening posture, other. But these are the small things what I've mentioned that if you just want to do pranayama practice or meditation practice, these You are can at least sit that. small things which you can do, which will definitely help you for sure. If you even do just these things, this will only help you, right? But everything will come with time, not in one day. So till that time, keep practicing. But then just see what do you need now, right now. Okay, you need some support to sit on Yes. something. Yeah. Because when you will sit there, just like, no, I will sit down only, and then after 5 minutes, this is paining, that is paining, that is paining. Absolutely. We don't want that. We want that 20-30 minutes should be going smoothly. It really doesn't matter where I'm sitting right now, right? Cool. So for beginning, don't worry about it. Yeah, for the subtle practices later on, you have to work holistically. Then Absolutely. holistically, right? ठीक है sir. Thank you so much Okay, for today. okay, Suchi ji. See you Thank you. tomorrow, sir. Thank you. Bye. Yes, Hina ji. यस सर नमस्ते सर सिद्धासन में हम ब्लैंकेट या स्मॉल पिल्लो रख सकते हैं क्या क्योंकि सिद्धासन मुझे कंफर्टेबल है बिल्कुल रख सकते हैं बिल्कुल नो इश्यूज बिल्कुल थोड़ा सा एक लेयर रख सकते हैं जिसमें हम थोड़ा सा उठ जाएं बिल्कुल रख सकते हैं यस ओके सर और सर काफी लोग बताते हैं मींस इंस्टीट्यूट अदर इंस्टीट्यूट में कि जैसे वज्रासन में आप बैठ रहे हो तो 4 फिंगर का गैप होना चाहिए दोनों नी में तो मींस दैट टोटली डिपेंड्स नॉट सेम फॉर एवरीवन मतलब हर किसी के लिए सेम नहीं बोलूंगा मैं कुछ लोग सामने पास में भी रख सकते हैं जिन लोगों के हिप जॉइंट में इश्यू होता है इश्यू कहने का मतलब कि डिजाइनिंग डिफरेंट है तो उनके लेग्स बाहर हो जाते हैं तो वो तो डिफरेंट है ऐसा कोई जरूरी नहीं है यस सर आज अवेयरनेस की आपने बात की तो बस मेरा वही फोकस था कि मैं विदाउट एनी सपोर्ट में बैठ सकूं 2 घंटा ये मेरा संकल्प था एंड
काफी टाइम तक मैं बैठ पाई, लेकिन फिर लास्ट में मेरे को सपोर्ट लेना पड़ा, क्योंकि मैं अपने बॉडी को जानना चाहती हूँ कि अवेयरनेस यहाँ पे कहाँ पे है, बॉडी के ऊपर कैसे वर्क कर सके, जी। माइंड के ऊपर कैसे वर्क कर सके। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे मुझे अपने आप को जानने का एक रास्ता दिखाया सर। ये थैंक यू रास्ता हमें तो गुरुओं ने दिखाया है, हम तो बस शेयर कर रहे हैं ना, उन्होंने ही सर। दिखाया। थैंक यू इना जी। यस वर्षा जी। नहीं सर, मेरा एक क्लाइंट है, वो हम बोलते हैं ना कि पिलो ले लो, पिलो के ऊपर बैठो तो स्ट्रेट हो जाएंगे, और तो उनको यहाँ पे कुछ लिया तो ठीक लगता है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा पिलो पे बैठ के मुझे ठीक नहीं लगता, यहाँ पे कुछ लो, दोनों थाइस के यहाँ पे बैठ के तो उनको अच्छा लगता है, तो अलाउ किया है मैंने। तो इसका मतलब हिप तो जॉइंट इस केस में मैं अलाउ तो ठीक है आपका, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि जितना चीजें आप सामने की तरफ रखोगे ना उठाने के लिए, उतना बॉडी और राउंड हो जाएगी। अगर आप थाइस के नीचे रखोगे, जितना नीज ऊपर आएंगे उतना बैक राउंड होगा, जितना नीज नीचे जाएंगे उतना बैक स्ट्रेट होगा। तभी तो मैंने बोला अगर नी उठ रहा है तो मत करो, क्योंकि दैट मीन्स कि बैक फेस स्ट्रेट नहीं आएगा। और नहीं, वो नॉर्मल सुखासन में भी बैठते हैं तो दोनों तरफ उनका बहुत यहाँ पे पेन होता है, और उन्होंने कहा पिलो मुझे बैठने के लिए नहीं चाहिए, यहाँ मैं कुछ ले लूं तो मुझे अच्छा लगता है, तो फिर उनको बैठने के लिए भी कुछ और यहाँ पे कुछ ऐसे चाहिए। यस, तो हाँ, थोड़ा ओके ऊंचा, उससे ज्यादा ऊंचा बैठने के लिए, और फिर उसके ओके नीचे ओके। और मतलब उनका हिप जॉइंट टाइट है। हिप जॉइंट राइट है। ओके हिप से लेके पूरा कनेक्टेड है ना, हिप से लेके फिर हाँ नी, फिर नीचे लेके नाउ, तो सब चीजें करना पड़ेगा उसमें। फॉर्म रोलिंग वर्क है, थोड़ा फॉर्म रोलिंग करवाओ राइट। उसमें। बहुत मुश्किल है सर, एक एक इतने क्लाइंट होते लाइक मतलब लेग रेजेस भी नहीं कर सकते, उसमें भी उनको मैंने सिखाया था डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग, बिल्कुल उनको आ ही नहीं रहा था। तो अभी आपने बाल्टी का जो एग्जांपल दिया ना, वो अभी मुझे क्लिक हुआ, मैंने मेरे मन से उनको दिया था कि मैं उनको कैसे बताऊं, कैसे करूं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे है, उनका एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा था। तो मैंने कहा आप नल छोटे बाटी में पहले धीरे धीरे पानी जाता है ना, नीचे से जाता है वैसे, तो फिर उनको आ गया पता नहीं किससे और क्या। और जब आपने वो लेट के भी बताया था कि डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करो, तो उनसे उनको आइडिया आ गया, लेकिन अभी बहुत अच्छा करें। लेकिन उनको जो मेरा अभी सर ऐसा हो गया कि कपल कपल का ही क्लास चल रहा है मेरा, पता नहीं पहले से ट्रेंड हो गया। मेरी फ्रेंड थी, उसका ले रही थी, तो उसके हस्बैंड वाला मैं भी ज्वाइन होता हूँ, फिर दूसरे उनका देख के दूसरों ने बोला, तो वो दोनों का ही हो रहा है। तो वो जो फीमेल है मेरी फ्रेंड है, वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है उसको, क्योंकि काफी एक्सरसाइज करती है वो। और उनका हस्बैंड है, वो सिर्फ साइकिलिंग बहुत करते हैं, मतलब एक ही टाइप का, लेकिन उसने उसका देख के बोला नहीं मैं भी करता हूँ। तो बहुत कुछ अभी 3 मंथ्स 4 मंथ्स हो गए, तो बहुत कुछ ये किया है, लेकिन उनका यहाँ पे बहुत टाइट है और हाइट भी ज्यादा है, तो उनको मतलब आगे झुकने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत से आसन में भी प्रॉप वर्क बहुत लगता है। लेकिन आपने इतना अच्छा सिखाया है कि मुझे अपने आप थोड़ा आ जाता है जजमेंट, तो मैं कर सकती हूँ। गुड, Yeah. सही है वर्षा जी, बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हो आप अपने कॉन्फिडेंस में, बिल्कुल नहीं सर, डिफरेंट। और मेडिटेशन का ये है सर कि सब बोलते हैं तुम बहुत अच्छा लेती हो, उनको एक्सपीरियंस आ रहे हैं और मुझे नहीं आ रहा है, ये तो मुझे बहुत वो गिल्ट है, इसलिए मैंने ये क्लास में कल कह नहीं पाई, क्योंकि वो उनको इतना हो रहा है और मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे कहीं तो भी वो गलत लग रहा है। वो मैं जैसे आपने सिखाया स्टेप बाय स्टेप, बहुत उनको अच्छा लग रहा है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, या जितनी एडवाइसेस हम दूसरों को देते हैं, अगर हम 10% फॉलो करें तो हमको राइट, बहुत ज्यादा फायदा होगा। राइट। वो मराठी में सर वो कहावत है एक, दुसरा सांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः मात्र कोरडे पाषाण, मतलब दोनों को ब्रह्म ज्ञान सिखाते हो, खुद तो बिल्कुल पत्थर हो। जैसे राइट ये राइट। सही में हो गया है मेरा, लेकिन आपको क्लास सुनते आपको देखते ही पता नहीं कहाँ से इतना बहुत उत्साह आ जाता है सर। सही है, गुड है, गुड है। वही करना है, वही करना है वर्षा जी, हमें ना खुद फॉलो करना है पहले, तभी मैंने हमेशा मैं बोलता हूँ दूसरों को सिखाने से पहले खुद फॉलो करो, जब खुद फॉलो करोगे तो यू कैन गिव इन द सेम वे। यस। वरना वो अभी जैसे आपके लिए बहुत अच्छा जा रहा है, तो फिर वो मल्टीफोल्ड अच्छा जाएगा अगर आप खुद फीलिंग करके करोगे उसे तो। मतलब मैं जिनका लेती हूँ उनको थोड़ा बीपी वगैरह का भी था ना, तो मुझे फोन करके बोलते हैं नहीं तुम हमारा नाइट मेडिटेशन भी लो, और मैं सब वो करके वो बताते हैं मुझे कि इतनी अच्छी नींद आई, पता नहीं तुम्हारा कब वो खत्म हुआ क्या हुआ, और रेगुलरली करते हैं। और मुझे लगता है कि लेती तो हूँ, बट मुझे क्यों नहीं एक्सपीरियंस हो रहा है मतलब मेडिटेशन का। आपको आपको उसके लिए एक्सपेक्टेशन हटाना पड़ेगा और सिर्फ हाँ, करना मैं है।
वो सब पता है मुझे, मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ कि क्या होगा क्या हाँ। होगा इसमें, पता हो इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट फिर भी मैं वही करती हूँ। वही चीज है, यस। वही चीज है। तो आपको वही चीज करना है, जो आप उनको क्यू दे रहे हो ना, अपनी क्लास रिकॉर्ड करके उसको सुन के खुद किया करो। यस सर। समझे? नहीं जो आप आप तो उन्हें कर ही बता रहे देंगे, हो। कुछ ना कुछ करके हो ही जाएगा सर, ये मुझे है।